مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا، خدا ہم سے کیا طلب کرتا اور خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم انسانی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو تب بھی جب ہم ان ریلیشنز میں چلتے ہیں تو ہسبینڈ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنی وائف سے، اور وائف کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، بچوں کی اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ کی توقعات، ان کا تقاضا اپنے بچوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فرما برداری کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا اچھا نام بنائیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرما برداری کی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا، جس نے ہم سے اتنی محبت کی، ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہ خدا جس نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت ہم سے کی اور اول درجہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ خدا، وہ آسمانی باپ ہم سے کیا چاہتا، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جو مالکوں کا مالک ہے، جو حاکم کل ہے، جو خاتم التمام ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب ہم مقدس استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو استثناء 10 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، استثناء کی کتاب مقدس موسیٰ کی معرفت لکھے گئے جو تعلیمی، جو خدا کے آئین، جو خدا کے فرمان، جو خدا نے ان پر ظاہر کیے، جو خدا نے انہیں بتائے، اور قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے ہوئے خدا نے اپنی جو گہرے بید، اپنی باتیں جو خدا اپنے بندہ موسیٰ سے روبرو ہو کر کلام فرماتے تھے، وہ کلام جب انہوں نے بائبل مقدس میں تحریر کیا گیا تو اس کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ کلام ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے استثناء 10 باب اور اس کی 12 آیت میں، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر خدا جو ہے اپنے بندہ کی معرفت جو کلام فرماتا ہے، لکھا ہے کہ پس اے اسرائیل، پوری قوم سے خدا کا جو کلام ہے، خدا اپنے سبھی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اسرائیلی قوم سے، جو خدا نے جنہیں چنا، خدا نے جنہیں الگ کیا، خدا نے انہیں وہ اچھی زمین، اچھے باغات والی اور وہ علاقہ جات دیے جن کے لیے انہوں نے تگ و دو نہ کی، جن کے لیے انہوں نے محنت نہ کی، اور اس کے پیچھے ساری وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا تھا، خدا نے انہیں چنا، خدا نے انہیں دوسری قوموں سے الگ کیا اور ممتاز کیا۔ اور یہاں پر خدا کے تقاضے آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ پس اے اسرائیل، تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے۔ سب سے پہلی بات جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے خوف کو مانیں۔ بائبل مقدس میں جب ہم خدا کے خوف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بائبل سکھاتی ہے کہ خدا کا خوف دانائی کا، علم کا شروع ہے۔ جب ہم خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دانائی کی اور علمی
जो खुदा की बातें हैं उनसे अपने आप को भरना शुरू कर देते हैं। और खुदा का खौफ जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो हम हर उस बुरे काम से, हर बुराई से, हर बदी से किनारा करते, हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं जो खुदा को पसंद और खुदा का पसंदीदा है। फिर जब खौफ में रहकर हम ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो तब हम खुदा को पसंद आते हैं। बाइबल मुक़द्दस में जब हम मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं तो उन्होंने खुदा खौफ में ज़िंदगी बसर की, तो खुदा उन्हें मुमताज़ करता गया, खुदा उन्हें मुख्तारियाँ देता गया। खुदा ने उनकी ज़िंदगी में इतनी मुख्तारियाँ रखी कि जहाँ कहीं गए खुदा उन्हें मुख्तार बनाता गया। हाकमियत तो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में रखी, और वजह क्या थी? वो खुदा का खौफ रखते थे। और यहाँ पर भी लिखा है खुदा हमसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि हम खुदा का खौफ रखें। हर बुरे काम में, हर यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं इस नीयत से, इस दिल से करें कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, हम बाप की निगाहों में हैं, उसकी निगाहें जो है वो सारी ज़मीन की सैर करती हैं। कभी ये ख्याल ना करें कि हम जो कुछ करते हैं वो खुदा की निगाहों में नहीं, खुदा इसे देखता नहीं, और इस रोहे ज़मीन पर रहते हुए खुदा की हम निगाहों में हैं। और अगर हम निगाहों में हैं तो हमें क्या करना है? खुदा का खौफ रखना है। हर काम में खुदा को याद रखना, हर बात में खुदा को याद रखना। जिन खुदा के कामों को, जिन बातों में खुदा के कलाम को बयान किया गया है, हमें हर उस काम से अपने आप को रोक के खुदा का खौफ रख के ज़िंदगी बसर करनी है। और फिर लिखा है उसके बाद क्या है? और उसकी सब राहों पर चलें। पहली बात, खुदा की पहली डिमांड, खुदा का पहला मुतालबा, खुदा का पहला तकाजा हमसे क्या है कि हम खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करें। और उसके बाद क्या है कि उसकी सब राहों पर चलें। यानी जब हम खौफ रखेंगे तो उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि हम उसकी सब राहों पर चलें। और खुदा की सब राहें क्या हैं? नेकी की, भलाई की, अच्छाई की। जिन हुक्मों को खुदा का कलाम फरमाए, हम उन हुक्मों को बगैर किसी बहस के, बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी मलामत के, बगैर किसी हिचकिचाहट के खुदा के हुक्म को सुनकर उसकी सब राहों पर चले। हमारे लिए हुक्म चाहे सख्त ही क्यों ना हो, हमें कलाम के अंदर रहकर, कलाम की बातों में रहकर उसकी सब राहों पर चलना है। और कलाम की बातें क्या हैं? उसके हुक्मों पर, उसकी राहों पर चलने की बातें क्या हैं? नेकी की, अच्छाई की और बुराई से किनारा कशी करने की। और फिर लिखा है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और जो तीसरी बात खुदा हमसे चाहता है वो क्या है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से क्या करें? खुदावंद की बंदगी करें। बंदगी करना क्या है? खुदावंद की इबादत करना, खुदावंद की सिताइश करना, खुदावंद की हम्द करना। और जब हम इबादत के अमल को देखते हैं, जिन ज़िंदगियों में खुदा की बंदगी थी, जो बंदगी करने वाले लोग थे, जब हम देखते हैं वो खुदा की बंदगी में कैसे सरखम करते थे, कैसे वो उसके जी हजूरी में रहते थे, कैसे वो सारी सारी रात, पूरा पूरा दिन उसके हजूर में रहते थे, तो उन ज़िंदगियों को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें वाह हो जाती कि कैसे खुदा की मोहब्बत में सरशार लोग थे। आज बहुत सी ज़िंदगियाँ, बहुत से लोग जो हैं वो जिस्मानी तौर पर तो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन रूहानी एतबार से, रूह के तौर पर यानी कि दिल से वो खुदा की बंदगी नहीं करते। ज़ाहरी तो वो नज़र आते हैं लेकिन उनके दिल खुदा के आइन को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में, अपने रंग ढंग में, अपने चाल चलन में लेकर आने से घबराते हैं। और ये हकीकी इबादत नहीं है, ये खुदा से मोहब्बत नहीं है, ये खुदा की बंदगी नहीं है। बल्कि खुदा की बंदगी क्या है? पूरे दिल और पूरी जान से खुदावंद की बंदगी करना, इबादत करना,
उसकी सिताइश करना, उसकी हम्द करना, उसकी मदह सराई करना, उसके हजूर में हम्दो सताइश के मज़ामीर गाना। और जो उसकी बंदगी करने वाले लोग हैं, बाइबल में लिखा है, मुकद्दस पौलुस ये कलाम फरमाते हैं कि हर वक्त रूहानी गज़लें गाया करो। यानी कि रूहानी हालत में रहते हुए, दुआया हालत में रहते हुए हम हर वक्त शुक्रगुजारियाँ करते रहें। उसकी नेमतों पर, उसकी बरकतों पर, उसकी शफ़क़तों पर हम हर वक्त उसके हुज़ूर सर्ब सजूद रहें, शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी महिमा गाते रहें, उसकी तारीफ़ करते रहें कि खुदावंद तो कितना अजीम है, तूने हमारी ज़िंदगी में कितने कितने बड़े काम किए हैं और हर रोज़ हमें संभालता और हमारी फ़िक्र करता है। ये है खुदा की बंदगी करना। तो ये खुदा इंसान से चाहता है, ये खुदा के तकाज़े हैं हमसे। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के तकाज़ों में ज़िंदगी बसर करें, जो बाप की मर्ज़ी है, जो एक बाप अपने बच्चों से चाहता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो आज हमें बाइबल मुक़द्दस को फॉलो करते हुए, बाइबल मुक़द्दस की बातों पर यकीन रखते हुए वैसे बाप के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। और तकाज़े क्या हैं कि खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसके खौफ में ज़िंदगी बसर करें, और खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसकी सब राहों पर चलें। ऐसा नहीं कि एक हुक्म तो हम बड़ी खुशी खुशी मानें और खुदा के दूसरे हुक्म को मानते हुए हम जो है वो सरकशी करें, बगावत करें, ऐसी हम राहों का इंतखाब ना करें। और फिर लिखा है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करें।